Okay. Now we are starting with the question number 7. Following on the 7, this is the question of the amalgamation. इन questions में specifically हम लोग देखेंगे PC मतलब purchase consideration of this questions. तो details हम बाद में explain करूंगे. PC से related जितना information है उतना consider करेंगे and PC prepare करेंगे, right? Okay. Then following on the summarize the balance of the Rohan Limited and the Sohan Limited as on 31st March 2017. Liabilities of Rohan and Sohan, assets of Rohan and Sohan. Share capital 9% preference shares of 100 each to equity share of 100 each. Right? अब मुझे बता how many number of share of preference shares? Preference shares के रोहन लिमिटेड के कितने number of share है? 6,000, right? मतलब इतना आपको clear हो गया. 6 lakhs divided by 100, you got a 6,000. 9 lakh divided by 100, you got a 9,000. Equity share of 100 each है. 9 lakh divided by 100, that is a 9,000. 15 lakh divided by 100, that is a 15,000. Reserve and surplus में general reserve, evaluation reserve, export profit reserve, profit and loss account, secure loan में 12% debenture of 100 each, term loan, then current liabilities and provision में creditors and bill payable. This is your liability side of both the companies. Fixed assets, goodwill, land and building, plant and machinery, computer, investment, current assets, loan advances, stock, debtors, bill receivable and the bank. Mohan Limited was formed to take over the business of Rohan Limited and Sohan Limited. क्या पता चला? We are having the two companies, Rohan and what? Sohan. इन दोनों को टेकन ओवर करके एक न्यू बिजनेस शुरू हो रहा है. दैट इज अ विच कंपनी? मोहन लिमिटेड, राइट है. तो रोहन एंड सोहन इज अ वेंडर फर्म एंड मोहन लिमिटेड इज अ विच फर्म? परचेसिंग कंपनी, दैट इज अ कंटेनिंग कंपनी. अभी यहाँ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोला है? with a authorized share capital of 30 lakh consisting 20,000 13% preference share of 100 each and 1 lakh equity share of 10 each. ये इन्फॉर्मेशन न्यू कंपनी का है तो ऑब्वियसली वो पीसी में नहीं आने वाला. पर आपको इतना क्लियर हुआ जो न्यू कंपनी है वो मोहन लिमिटेड है एंड मोहन लिमिटेड के अपने कंपनी के कुछ इक्विटी शेयर है, कुछ क्या है? प्रेफरेंस शेयर है कि नहीं है? इक्विटी शेयर एज वेल एज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर. तो ये जो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर है ना, इन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर के एक शेयर का वैल्यू आपको पता चलेगा मोहन लिमिटेड का. प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू एक शेयर का 100 है एंड इक्विटी का कितना है बोलो? 10 है. टर्म्स ऑफ अमालगमेशन 9% preferential share of both companies are issued equal number of 13% preferential share of Mohan Limited at a price of 125. क्या समझा? 9% preferential share of both companies issued 13% preferential share of Mohan at a price of 125. मतलब जो 9% preferential share है वो ओल्ड कंपनी के preferential share है. दोनों कंपनी के 9% preferential share को मोहन लिमिटेड अपने कंपनी का 13% preferential share दे रही है. Now what is this 9% and 13%? This is a rate of dividend. This is a what? Rate of dividend. तो 9% preferential shares मतलब इनके ऊपर rate of dividend 9% था. मोहन लिमिटेड अपने कंपनी के 13% वाले preferential shares दे रही है. मतलब इन फ्यूचर जब मोहन लिमिटेड डिविडेंड देगी तो कौन से रेट से देगी? 13%. तो ये 13% 9% का आप भी कुछ भी नहीं करोगे, वो बस लिखो उसके नाम के साथ. दैट इज अ कैटेगरी ऑफ द प्रेफरेंशियल. क्लियर हो गया? तो यहाँ पता चला मोहन लिमिटेड अपने कंपनी के 13% प्रेफरेंशियल दे रही है. कितने में? 125. Okay, what is the nominal value of the preference shares of Mohan Limited? 100. ध्यान दो बोर्ड पे. ये 100 तो 25 का क्या हो गया फिर? प्रीमियम. एंड दिस इज अ नॉमिनल वैल्यू. क्लियर हो गया? तो मोहन लिमिटेड ने एट अ प्रीमियम शेयर्स इशू किया. इतना तो समझा. नेक्स्ट वन. देन मोहन लिमिटेड विल इशू 4 इक्विटी शेयर फॉर 3 शेयर्स ऑफ रोहन. रोहन के 3 शेयर के लिए मोहन ने अपने कंपनी का कितना शेयर दिया? 4. एंड 4 इक्विटी शेयर ऑफ 5 शेयर्स ऑफ सोहन. सोहन के 5 के लिए 4 शेयर्स दिए. आर टू बी इशूड एट 35. कितने में इशू किया? 35 में इशू किया. मतलब एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है बोलो? 10. एक इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10. ऊपर का 25 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम. समझ में आया? देखो मैंने बताया था आपको पीसी के कितने मेथड्स होते हैं? 2. नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड. पहले ऑब्जर्व करेंगे नेट पेमेंट मेथड है क्या. तो इक्विटी को मोहन लिमिटेड अपने कंपनी के इक्विटी शेयर दे रही है. प्रेफरेंस को भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. जब दोनों का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये नेट पेमेंट मेथड होता है. तो नेट एसेट देखने का जरूरत नहीं है. तो करे सॉल्व. ओके. एंड डिबेंचर के लिए इन्फॉर्मेशन थर्ड में दिया है बट एक्चुअल डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पीसी, इसलिए हम लोग डिबेंचर को कंसिडर नहीं करेंगे. सही है? अगेन वी आर हैविंग अ 2 फॉर्म. ओल्ड फॉर्म कितने? 2 है ना, तो दोनों का पीसी निकलेगा. तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे परचेस कंसिडरेशन ऑफ द विच लिमिटेड? रोहन लिमिटेड. सही है? रोहन लिमिटेड का कौन सा मेथड है बोलो? नेट पेमेंट मेथड. टेबल कैसे बनाते हैं पता आपको? इनर एज वेल एज व्हाट? आउटर. आई होप नो डाउट इन दिस. पहले क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स, अमाउंट एज वेल एज व्हाट? अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओल्ड फॉर्म रोहन, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर of Rohan Limited.
रोहन लिमिटेड के इक्विटी शेयर को मोहन ने क्या दिया? इक्विटी शेयर इन मोहन लिमिटेड क्लियरली लिखा है ना? ओके, रेशियो क्या था? कितने शेयर के लिए कितना? रोहन के कितने शेयर के लिए? 3 शेयर के लिए इशू किया 4 शेयर, राइट रेवांशी? क्या सोच रहे हो? 3 शेयर के लिए कितना इशू किया? 4 शेयर, बराबर है? ओके, गो टू द रोहन लिमिटेड, हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर देयर? चेक करो, समथिंग 9000, तो 3 के लिए 4, तो 9000 के लिए कितना? 12000, चेक करो जरा बराबर है क्या? तो कैलकुलेशन आया 12000, वो नंबर ऑफ शेयर है, नॉमिनल वैल्यू को लिखेंगे 10 से मल्टीप्लाई, एंड 12000 नंबर ऑफ शेयर है, बट प्रीमियम कितने का है? 25, क्योंकि एक शेयर हम लोगों ने कितने में इशू किया? 35 में, 10 का नॉमिनल वैल्यू, तो बैलेंस क्या बन जाएगा? प्रीमियम। सही है? समझा कि नहीं समझा? राइट, ओके, अब क्या होगा बोलो? देन 12000 इंटू 25 कितना होता है? देन 3 और 1 4, दैट इज व्हाट? 4,20,000, इक्विटी को सेटलमेंट कर दिया। अब सेकेंड कंपनी, दैट इज अ 9% प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? बोलो, सोहन। हाँ या ना? हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा बोलो? उनको क्या मिला? 13% प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? रोहन लिमिटेड। क्या दे रहे उसको बोलो? हाँ सॉरी, मोहन लिमिटेड, न्यू कंपनी का नाम मोहन है ना, उसको नॉमिनल वैल्यू चाहिए। एंड नंबर ऑफ शेयर के बारे में कुछ रेशो दिया है क्या? नहीं। तो जितने ओल्ड फॉर्म में नंबर ऑफ शेयर है उतने ही न्यू कंपनी देगी। तो ओल्ड फॉर्म में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 6000 है, तो क्या लेंगे? नंबर ऑफ शेयर 6000, एक शेयर का वैल्यू 100। देन अगेन क्या आता है नॉमिनल वैल्यू के साथ? प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर 6000, प्रीमियम कितने का? 25 का, तो ये होगा कितना? 6 लाख, 1,50,000, टोटल विल बी 7,50,000। अब 7,50,000 प्लस 4,20,000, शायद दिस इज अ पीसी फॉर फर्स्ट फर्म। आप सेकंड का निकाल सकते हो कि मैं करके दिखाऊं? सिमिलर है। सेकंड में क्या होगा चेक करते हैं, मैं ओरली बता देती हूँ। ये समझा आपको सबको? ओके, सेकंड में भी क्या होगा? हेडिंग क्या लिखेंगे रोहन के बदले में? बोलो, अभी सोहन का निकाल रहे पीसी, वो भी कौन से मेथड से? नेट पेमेंट मेथड में। सही है ना? तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर इन सोहन। उनको क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर इन व्हाट? मोहन। उसके अंदर वापस से रेशियो, कितने शेयर के लिए कितना? क्या रेशियो दिया है देखो जरा? 4 इक्विटी शेयर फॉर 5 शेयर ऑफ सोहन, मतलब जित ओल्ड नंबर को पहले लिखना है। 5 को कितना शेयर दिया जा रहा है? 4, राइट? तो सोहन के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 5 करो, 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया बोलो? 12,000 ही आया, ये नंबर ऑफ शेयर थे। तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 10 ना, कि 100? हाँ 10। एंड अगेन प्रीमियम कितना आएगा बोलो? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ करके देखो, ये कितना होगा? 1,20,000। सही है क्या? कितना हुआ फिर? 4 लाख। अब सेकेंड वन, 9% प्रेफरेंस शेयर इन विच कंपनी? सोहन लिमिटेड। उनको क्या दिया जा रहा है? 13% प्रेफरेंस शेयर इन विच फॉर्म? मोहन लिमिटेड। तो चलो बताओ, इसके लिए कोई रेशो है नहीं, तो नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम, इसलिए नंबर ऑफ शेयर वही लेंगे जो ओल्ड में थे। कितने नंबर ऑफ शेयर है? समथिंग 9,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100, एंड 9,000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 25 करो प्लीज। 2,25,000 एंड टोटल 11,25,000 प्लस 15,45,000। चेक करो, हो गया पीसी। समझ में आया? कुछ डाउट है क्या? बोलो फटाफट। समझ में आया? गुड। ओके,
Now we are starting with the question number 8. Following is a summarized balance sheet of X and Y Limited. Balance sheet as on equity share of 10 each, export profit reserve (P&L), journal reserve 12% debenture 100 each, and creditor, building machinery, stock, debtors, bank and share issue expenses. Z Limited was formed to acquire all assets and liability of X Limited and Y Limited. तो X and Y को टेकन ओवर करके कौन सा कंपनी बन रहा है? Z Limited बन रहा है. On the following terms and conditions, Z Limited to have authorized share capital of 5 crore divided into 5 lakh equity share of 100 each. पता चला Z Limited का ऑथराइज कैपिटल देके रखा है. इसके अंदर जो इक्विटी शेयर है उसके एक इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 है. नाउ बिजनेस ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन ओवर एट अ टोटल प्राइस ऑफ 1.2 करोड़. मतलब Z ने X एंड Y दोनों को टेकन ओवर किया और टोटल प्राइस कितने में टेकन ओवर किया? 1.2 करोड़ में. तो यू आर हैविंग अ पीसी इन अ लमसम अमाउंट. डायरेक्टली पता चला Z ने X को लिया, Y को लिया, दोनों को मिलके 1.2 करोड़ में ले लिया. ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन देके रखा है. तो पीसी का अमाउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है. दैट इज 1.2 करोड़ फॉर बोथ द कंपनीज. ठीक है, आगे देखते हैं. एंड इट इज डिस्चार्ज बाय Z लिमिटेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 20. और ये पीसी का अमाउंट है वो कौन से फॉर्म में दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर में. इक्विटी शेयर के एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 100 है. उसका प्रीमियम कितना परसेंट है? बोलो 20%. ठीक है. नाउ द शेयर होल्डर ऑफ X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड to get a shares in Z Limited in the ratio of net assets value of the respective share. अब 1.2 करोड़ का जो पीसी है, 1.2 करोड़ का मतलब क्या होता है? 1 करोड़ 20 लाख. सही है. 1.2 करोड़ मतलब 1 करोड़ 20 लाख. ये पीसी दोनों का मिलके है. मतलब किसका है? X का एंड Y का है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. पीसी तो मिला हम लोगों को 1.2 करोड़, बट आपको ये भी तो चाहिए ना X का कितना, Y का कितना, राइट? दोनों अलग अलग भी तो चाहिए. Z ने बोला मैं दोनों बिजनेस को 1.2 करोड़ में लूंगा, खत्म, नो प्रॉब्लम. बट हम लोगों को X का पीसी कितना, Y का पीसी कितना, वो भी डिसाइडेड करना है. और उसके लिए पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है. क्या बोला है? शेयर होल्डर ऑफ X एंड Y टू गेट ए शेयर इन Z लिमिटेड. X एंड Y को Z लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे बिकॉज पीसी पेड करने के लिए Z लिमिटेड अपने कंपनी के शेयर्स दे रहा है. ओके, शेयर मिलेंगे इन द रेशियो ऑफ द नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर. इन द रेशियो ऑफ द व्हाट? नेट एसेट्स वैल्यू. बराबर है. अब नेट एसेट्स वैल्यू मतलब क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी. बराबर है. तो इसके रेशियो के ऊपर वो डिवाइड करेंगे. तो कैसे? ध्यान दो. हाँ, मतलब 1 करोड़ 20 लाख में से X को कितना, Y को कितना, उसके लिए हम लोगों को चाहिए नेट एसेट्स और उसका क्या चाहिए? रेशियो. अब नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस व्हाट? मतलब नेट एसेट्स मेथड आया. सही है. पीसी दिया है, नो प्रॉब्लम. बट पीसी ए फर्स्ट को कितना, सेकंड को कितना, उसके लिए हम लोगों को उनका नेट एसेट्स निकालना है. उसके रेशियो के ऊपर ये वन अमाउंट डिवाइड करना है. फिर उनको क्या पे करने हैं? इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं. तो सबसे पहले अभी हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नेट एसेट्स. ओके, एक्स का वाई का दोनों एक साथ बना देते. इनर कॉलम आउटर कॉलम कुछ नहीं रहेगा, एक ही सिंगल कॉलम रहेगा, दैट इज इनर. मतलब आउटर समझो, इनर समझो. एक्स एंड वाई यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स. कुछ रिवाइज वैल्यू दिया है क्या? चेक करो प्लीज. डिबेंचर के लिए भी कुछ बोला है. क्या बोला है डिबेंचर के लिए? द डिबेंचर ऑफ बोथ द कंपनीज टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डिबेंचर ऑफ 14% एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. मतलब क्या? दोनों कंपनी के जो डिबेंचर्स है उनको हम लोग इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करें 14% डिबेंचर में. बट उसको कितने परसेंट में दिया जा रहा है? बोलो 10% डिस्काउंट में दिया जा रहा है डिबेंचर्स. तो डिबेंचर इज ऑल्सो लाइबिलिटी, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, राइट? जेड कंपनी अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रही है बट डिस्काउंट पे दे रही है, 10% का डिस्काउंट. इतना याद रखो. आफ्टर दैट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज व्हाट? तो डिबेंचर का रिवाइज वैल्यू है, तो डिबेंचर को चाहिए तो टिक करके रखो. ऑल द टैंजिबल एसेट्स बोथ कंपनीज आर टेकन ओवर बाय जेड लिमिटेड बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग. सारे एसेट्स को बुक वैल्यू में ले रहे हैं लेकिन बिल्डिंग एंड मशीनरी का रिवाइज वैल्यू है वो लिया जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ एक्स एंड टेकन ओवर एट 6,50,000 5 लाख रिस्पेक्टिवली. तो क्रेडिटर का भी रिवाइज वैल्यू है. एंड 7 pounds statutory reserves are maintained for 3 years. इसका कुछ नहीं होगा, इसको साइड पे रख दो. कंप्यूट द पीसी फॉर द एक्स लिमिटेड एज वेल एज वाई लिमिटेड. हम लोगों को पीसी निकालना है. अभी हम लोग सिर्फ पीसी कर रहे हैं. ठीक है, पीसी का अमाउंट पता है 1 करोड़ 20 लाख है. बट 1 करोड़ 20 लाख को एक्स एंड वाई में डिवाइड करना उनके नेट एसेट्स के रेशियो के ऊपर. नेट एसेट्स फाइंड आउट करना मतलब एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना. एसेट्स का टोटल करेंगे एट अ रिवाइज वैल्यू एंड उसमें से क्या माइनस करेंगे? बोलो लायबिलिटी, वो भी विच वैल्यू? एट अ रिवाइज्ड वैल्यू. समझ में आया? ओके, चलो करें फिर. सबसे पहले क्या होता है बताओ. तो पहले क्या लिखना है? एसेट्स लिखना है. गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड. पहला कौन सा है? बिल्डिंग. एंड बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू है, बोलो कितना है? फर्स्ट कंपनी का. सेकंड कंपनी का? हाँ. नेक्स्ट क्या है? बैलेंस शीट के सीक्वेंस में जाओ. हाँ, कितना? नेक्स्ट. नेक्स्ट
कुछ रिवाइज वैल्यू नहीं है शायद, बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट। स्वप्ना ये टोटल करो फर्स्ट कंपनी का तब तक एक्स लिमिटेड का 10 लाख। हाँ हाँ हो गया, इतने ही एसेट्स है और कुछ नहीं है ना एसेट्स में। अब कर लो अपने एक्स का टोटल क्या रहेगा, आप वाई का कर लो। बोलो एक्स का टोटल कितना आता है? 1 करोड़। यस 1 करोड़ 1 लाख, ये हो गया टोटल एसेट्स। वाई का क्या तो बता देना, उसमें से माइनस करते हैं लाइबिलिटी, वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यस 67,70,000 सही है। अब उसमें से लाइबिलिटी माइनस करना है आउटसाइडर, गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, उसमें है डिबेंचर एंड क्रेडिटर, बस 2 लाइबिलिटी है, दोनों का रिवाइज वैल्यू है। डिबेंचर है कितना बोलो, एक्स में 5 लाख है, 10% डिस्काउंट मतलब माइनस करो 10%, कितना मिलेगा 4,50,000, हाँ या ना। और ये 3 लाख है, 3 लाख में से 10% माइनस करेंगे तो 2,70,000 सही है। फिर क्या दिया हुआ है क्रेडिटर, बोलो क्रेडिटर कितना है एंड व्हाट, 5 लाख रिवाइज वैल्यू है ना ये। हाँ अब देखो टोटल मत करना डायरेक्टली, ये क्या करना माइनस। अब फर्स्ट कंपनी का करो एक्स लिमिटेड का, रिवांश वाई लिमिटेड का करो। सिक्स जीरो अच्छा 90 लाख ओके, बोर्ड पे ध्यान देना। ये बन गया व्हाट, अभी ये बना नेट एसेट्स। आपको क्या चाहिए, नेट एसेट्स का रेशियो चाहिए, तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए वो अमाउंट कॉपी करो। 90 लाख इज टू व्हाट, कॉमन जीरो निकाल दो, कितने कॉमन जीरोज है 6 कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों गए, कितना मिला 9:6, शॉर्ट करो दैट इज 3:2 राइट है। तो अभी किसके ऊपर रेशियो पे डिवाइड किया, 3:2 के ऊपर डिवाइड करोगे बराबर ना। कौन सा अमाउंट 1 करोड़ 20 लाख, तो ये 1 करोड़ 20 लाख है जिसको हम लोगों को डिवाइड करना है किसके ऊपर 3:2 के ऊपर। चलो करो फटाफट, डिवाइडेड बाय 5 कर लो, इंटू 3 करो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। फर्स्ट कंपनी में 72 लाख सही है ना। कैसे किया पता है ना, कैसे किया देखो, 1 करोड़ 20 लाख को आपने रेशो के टोटल से डिवाइडेड किया तो कितना आया, कितना आया था 24 लाख आया रहेगा डिवाइड करके, है ना। एंड देन मल्टीप्लाई बाय कितना किया, फिर 24 लाख इंटू व्हाट 3 किया, और यहाँ पे क्या होने वाला है 24 लाख इंटू 2 कितना आता है 40, हो गया पीसी का अमाउंट, एक्स का इतना वाई का इतना, तो पीसी मिल गया दोनों का। बट पीसी डिस्चार्ज भी तो आना चाहिए, क्या दिया उन्होंने, जेड लिमिटेड ने अपनी कंपनी के शेयर दिए, वो भी एट अ प्रीमियम, तो अभी लिखेंगे डिस्चार्ज ऑफ पीसी। ओके पहले क्या करोगे बोलो, एक्स एज वेल एज व्हाट वाई, और यहाँ पर्टिकुलर्स क्या दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर इन विच फर्म, जेड लिमिटेड। पता है आप लोगों को नॉमिनल वैल्यू भी है और प्रीमियम भी है, तो बाइफर्फिकेट करके लिखना है। नंबर ऑफ शेयर पता है क्या बट नहीं, तो निकालने होंगे कल की तरह, याद आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर फॉर एक्स लिमिटेड। पीसी का अमाउंट कितना था बोलो 72 लाख, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस चाहिए। इशू प्राइस कैसे निकलता है बोलो, जरा जाओ क्वेश्चन में प्लीज, पॉइंट नंबर 2 में। कंपनी ने शेयर इशू किया जिसका एक शेयर का वैल्यू 100 था, प्रीमियम कितना था 20%, तो 100 प्लस 20% कितना आएगा 120, दैट इज द इशू प्राइस। एंड नाउ 72 लाख डिवाइडेड बाय 120 कितना आया, पक्का। हाँ तो अभी नॉमिनल वैल्यू में होगा 60,000 इंटू 100, दैट इज हाउ मच 60 लाख। एंड यहाँ पे भी 60, या तो फिर अभी 20% है ना, तो डायरेक्टली 60 लाख के ऊपर 20% कितना आया 12 लाख, हो गया समझा। सेम इसके नंबर ऑफ शेयर भी निकालने हो गया अलग से। चलो बोलो इसके खुद के नंबर ऑफ शेयर कितने, वाई का वैल्यू कितना है 48 लाख है ना।
डिवाइडेड बाय 120 करो, कितना आया? हाँ, तो इनका नंबर ऑफ शेयर कितना है? 40,000 है कि नहीं है? ये ए पार्ट था और ये बी कर रहा है, इंटू व्हाट 100, कितना मिलेगा बोलो? 40 लाख। एंड 40 लाख के ऊपर प्रीमियम कितना परसेंट है? 20, मतलब कितना आएगा? टोटल कितना होता है? खत्म, इजी था, समझ में आया कैसे करना है? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.